फ्लो का बेसिक हमने ऑलरेडी देखा है अभी, लाइक इन लास्ट एवरी सेशन whenever we are adding. So initially will not have anything, right? It's like totally blank canvas. So in order to use any of the palette, we need a basic container. That flow gives you the basic container. And in general, in software development, this is how the flow looks like. कोई भी एक्टिविटी को, और वो अगर सिमिलर एक्टिविटी है तो उसे एक सेपरेट फ्लो में हम रखते हैं. फॉर सपोज लाइक द डेवलपमेंट वी आर डूइंग, उसमें क्या होता है? पहले प्लानिंग स्टेज होता है, फिर उस चीज़ का एनालिसिस होता है, फिर डिज़ाइनिंग, देन डेवलपमेंट, देन टेस्टिंग. टेस्टिंग करके जब इंडिविजुअली सब क्या करते हैं उसे इंटीग्रेट करते हैं, देन वी पुश इट टू प्रोडक्शन, देयर वी डू मेंटेनेंस. तो फ्लो बेसिकली क्या है? डिवाइडिंग योर टास्क इनटू सेपरेट सेपरेट ग्रुप. हाँ. और in flow we have there are around types of flow in MuleSoft. If you go to the Mule palette, you can see, if you just type flow, so here you can see flow and subflow. Now let's see how it comes in picture. Remove this, and there is a one more flow. We call it a private flow. Let's understand that also. See, I mean now I did not select any flow. What I am trying to do, मैं एक लिसनर को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ. तो बाय डिफॉल्ट क्या हुआ? लिसनर ऐसे ही खाली कैनवास पे नहीं आया, इट इट ब्रॉट वन फ्लो आल्सो. इसने अपने साथ एक फ्लो भी लाया है. ठीक है. सो दैट इज द बेसिक फंडा. एनी पैलेट वुड बी नीडिंग अ फ्लो, उस फ्लो के अंदर ही रहेगा. ठीक है. आइदर यू हैव टू ऐड एक्सप्लिसिटली दैट फ्लो, और यू कैन जस्ट सिंपली start dropping your uh, you start dropping your palettes, and the flow automatically will come in the picture. Like how I did, I just dropped listener and flow came along with that. And we can bring flow directly also. Flow has four sections basically. One is its name. We can change it anytime. We have to select the flow and we go to the name. We name it main flow. Whatever we name, we write down in this box. We reflect it here. Another one is source. सोर्स में क्या है? जहाँ पे आपका ट्रिगर पॉइंट है कि आपके फ्लो को हिट कौन करेगा. अब दो केसेस है, या तो इट विल बी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, और इट विल वेट फॉर अदर्स टू फीड द इंफॉर्मेशन. सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कब होता है? जैसे हमने एपीआई डेवलप किया था, इफ यू रिमेम्बर. मैन एपीआई जो हमने डेवलप किया था, हमने कहा कि हमें एक एपीआई को एक्सेस करना है. तो एक लिसनर पे हमने वी हैड डिफाइन this protocol, local host and port and the source. तो तो ऐसे केस में क्या हो गया? दिस विल बिकम आवर listener, right? It will be running, that API will be running in some port wherein it will be listening to the request. दूसरा केस होता है कि ये किसी
को रिक्वेस्ट करेगा. इट विल नॉट बी पार्ट ऑफ योर लिसनर. इट विल नॉट बी लिसनर, इट विल बी रिक्वेस्टर. एच टी टी पी में अगर आप क्लिक करते हैं यहाँ पे एच टी टी पी पैलेट को सिलेक्ट करते हैं, यू विल सी टू थिंग्स, लिसनर एंड रिक्वेस्टर. सोर्स में विल कीप आइदर लिसनर और रिक्वेस्टर. लिसनर अभी तक हमने देखा है, रिक्वेस्टर भी हम देखेंगे लेटर इन लेटर क्लासेस. राइट, सो लेट्स कीप one listener here, and we already know how to configure it, right? So I'll not explain all those things. If I select listener, I'll get this connector configuration. First time I have to add it, second time I will get this edit button, and by default it will select localhost, HTTP, and LG regiment. Let's test the connection if that port is available. It says test connection successful, which means port is available. Okay, now, so that was source part of the flow. Now processing part is the actual thing which we have in the flow. Processing part may, if we have to connect to our database, if we have to read a file, if we have to call another flow, or any operation, like your actual activity will be done in process part. ठीक है. And the third part is error handling. Error handling basically करता क्या है, जो processing part में, if you are trying to do some operation, suppose if you are dividing two numbers, and then some error happens. Suppose in mathematics we have one case wherein we cannot divide any number by 0, right? In that case what happens, तो वहाँ पे ये ब्रेक करेगा, राइट? आप अगर दो नंबर को डिवाइड कर रहे हो, हम पहला नंबर 5 है, दूसरा नंबर 0 है, 5 डिवाइडेड बाई 0 करने में क्या होता है, इन्फिनिटी आता है मैथमेटिक्स में. दैट इज नॉट डिफाइंड. वो मैथमेटिक्स में डिफाइन नहीं है कि आप 5 को किसी चीज़ से डिवाइड करो. तो वैसे केसेस को कहाँ पे, वो वैसे केसेस में क्या होता है कि एरर आएगा, आपको एक्सेप्शन आएगा. तो वो फ्लो में इस पार्ट पे हिट करता है, वो हम देखेंगे एरर हैंडलिंग में कैसे वो एक्सेप्शन को कैच करते हैं, कैसे उसे फिक्स करते हैं. ठीक है, एक सेशन ही रहेगा हमारा एरर हैंडलिंग का, उसमें हम देखेंगे सारी चीज़ें. ठीक है, दिस इज योर मेन फ्लो. फिर होता है एक सब फ्लो. सब फ्लो क्या है, सपोज एक एक्टिविटी है विच इज रिपीटिंग. एक एक्टिविटी है सपोज जैसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स, एडिंग ऑफ 100 नंबर्स. तो जैसे इस टाइप का काम होता है जो कि कॉमन होगा. एक एक समझो, ऐसे समझो, एक फंक्शनैलिटी होगी. लेट मी एक्सप्लेन नॉट बैड. एक फंक्शन होगा ऐसा जो दो नंबर लेगा, ए और बी, और उसका काम होगा कि भैया ए और बी को ऐड करके रिटर्न कर दो. यहाँ पे हो क्या रहा है, इट्स जनरल. सर जी, या हम थोड़ा सा जा रहे हैं, वही फिर शुरू हो गया है टेंशन सुबह सुबह. हम मेरा कनेक्ट ही रहेगा, आप बाद में काट दीजिएगा. ठीक है, श्योर श्योर, ठीक ठीक, ओके ठीक, ओके. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक एक्टिविटी कर रहे हैं, राइट? वी आर एडिंग अप टू नंबर्स एंड रिटर्निंग द एडेड वैल्यूज. अब इसे कोई भी यूज कर सकता है, कोई भी आएगा उसे, वो क्या करेगा, दो नंबर पास करेगा. दो नंबर सपोज 3 and 5 है, देन यू विल गेट 8. तो ये रिपीटिव वर्क जो हो रहा है, दिस कैन बी यूज्ड बाय एनीवन.
ऐसे एक्टिविटी को व्हाट वी डू, वी कीप इन सब फ्लो. सब फ्लो, लेट्स सी हाउ वी यूज इट. नहीं, ये फ्लो ड्रॉप कर दिया मैंने. तो अब देखो कनेक्ट कैसे करेंगे सब फ्लो और फ्लो को. सब फ्लो और फ्लो को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास एक फ्लो रेफरेंस होता है, ठीक है. जैसे अब किसी के यहाँ जाना चाहते हो, इफ यू वांट टू सेंड मेल टू समबडी, यू नीड एड्रेस, राइट. यू नीड ईमेल आईडी. यहाँ पे अभी आप मेन फ्लो में थे, बट मेन फ्लो में यू वांटेड टू गो टू सब फ्लो और वहाँ पे कुछ एक्टिविटी करना है, जैसे 2 नंबर को ऐड करना है, देन यू वांटेड टू कम बैक. तो अभी अभी तो क्या है, अभी जो भी एपीआई को कॉल करेगा हमारे, वो मेन फ्लो पे आएगा, राइट. वो पर्टिकुलर एपीआई से कनेक्ट करेगा और फिर क्या होगा, एंड इट विल गो बैक. वो उसका जो रिक्वेस्ट था, रिस्पॉन्स था, उसे मिल जाएगा. बट यहाँ पे सब फ्लो से सब फ्लो में तो नहीं आएगा. तो हाउ वी गेट इनटू सब फ्लो, उसके लिए हमारे पास होता है फ्लो रेफरेंस. फ्लो रेफरेंस को जैसे हम सेलेक्ट करते हैं, तो फ्लो रेफरेंस को जैसे हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आपका टारगेट क्या है, कहाँ जाना चाहते हो, राइट. व्हाट इज द सब फ्लो यू वांट टू गो. तो यहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप पे जैसे ही करोगे, तो नहीं, लेट मी, तो यहाँ पे देखो दिखा रहा है ये, राइट, डेमो सब फ्लो. तो इसे सिलेक्ट कर लेना है. इसका मतलब ये हुआ कि आप इस फ्लो में से ये से ही पहले क्या करो, सब सब फ्लो में जाओ, वहां पे जो एक्टिविटी होगी उसे करके देन यू कम बैक टू मेन फ्लो. ठीक है, थोड़ा सा भी देखेंगे इसे रन करेगा. उससे पहले एक और चीज समझते हैं, लॉगिंग. लॉगिंग क्या होता है? लॉगिंग क्या होता है, जैसे आपने अगर रन किया होगा, तो ये आपका कंसोल जो है आपके एनी पॉइंट स्टूडियो का, तो आपने यहाँ पे एक चीज़ देखा होगा कि ये जैसे जैसे एक्टिविटी करता है ना, सो इट इज़ शोइंग एवरीथिंग कि अभी क्या कर रहा है, अभी इनिशिएट हुआ है, अभी रन हुआ है, राइट. लास्ट में दिखाया था कि आपका जो एपीआई है वो डिप्लॉय हो गया. तो ये सारी चीज़ें जो प्रिंट हो रही है आपके कंसोल पे, दैट इज दैट इज वी कॉल लॉगिंग. वो लॉगिंग आता कहाँ से, दिस दैट कम्स फ्रॉम दिस लॉगर. ठीक है, लॉगर में यू कैन राइट योर मैसेज, जो भी आप कंसोल में देखना चाहते हो यहाँ पे, दैट यू कैन मेंशन हियर. ठीक है, सपोज अगर इसे आपने सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे देगा कि आप क्या मैसेज प्रिंट करना चाहते हो. यहाँ पे यू कैन से आई एम इन मेन फ्लो. ठीक है, इसका नाम भी रख सकते हैं, मेन फ्लो लॉगर. तो ये लॉगर हम इसलिए हमने डाला यहाँ पे, हम देखेंगे हमारा फ्लो कैसे कैसे कहाँ कहाँ जा रहा है. ठीक है, अभी क्या है, मेन फ्लो में है. मेन फ्लो के बाद हमने क्या किया, फ्लो रेफरेंस से कॉल कर दिया है डेमो सब फ्लो को, राइट, दिस फ्लो को. तो यहाँ पे भी हम देखेंगे हम यहाँ पे पहुंचे हैं या नहीं. हाउ वी विल चेक दैट, यूजिंग लॉगर. एक लॉगर को ड्रैग एंड ड्रॉप किया. ठीक है, इसका नाम रखेंगे सब फ्लो. सब फ्लो लॉगर. और यहाँ पे लिखेंगे आई एम इन सब फ्लो.
अभी क्या क्या हमने मेन लिसनर से स्टार्ट किया, मेन फ्लो में आए, मेन फ्लो से हमने कॉल किया सब फ्लो को, वेलकम बैक, वेलकम डाउन टू दिस सब फ्लो। फिर सब फ्लो पे जो भी एक्टिविटी होगी वो करके कहाँ आना चाहिए वापस, मेन फ्लो में वापस जाना चाहिए। तो लेट्स सी इफ यू आर गोइंग बैक, वो कैसे देखेंगे, मेन फ्लो से पहले सब फ्लो में, फिर बैक टू मेन फ्लो। इसमें लिखेंगे आई एम बैक टू मेन। ये जस्ट टू अंडरस्टैंड के फ्लो में कैसे कैसे कहाँ कहाँ जा रहे हैं, जस्ट टू सी दैट वी हैव एडेड दिस। We are starting from main API. We have the time we are in main flow. फिर क्या हो रहा है, फ्लो रेफरेंस के थ्रू हम सब फ्लो में जा रहे हैं, देन अगेन वी आर कमिंग बैक टू मेन फ्लो। तो जहाँ जहाँ पे भी हमारा कंट्रोल जा रहा है, वी आर लॉगिंग इट, वी आर ट्राइंग टू फिगर इट आउट, वो हमें कंसोल में दिखना चाहिए। ठीक है, विल टेस्ट इट दिस, अभी जो कंसोल में आएगा ये, अभी जो अपन रन करेंगे इसको, तो एपीआई कॉल का नहीं आएगा। देखो कंसोल में कैसे प्रिंट होता है ये देख लो, ये जो आ रहा है ना इन्फो, इन्फो एंड आफ्टर दैट ऑल दिस इंफॉर्मेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये लॉगिंग जो है ना आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ पे, जब आपका एपीआई काम नहीं करेगा, कुछ एरर आएगा। तो देखो अभी जैसे यहाँ पे फेल हो गया, राइट, तो हमें कैसे पता चला ये फेल हो गया। एक तो इसने कलर चेंज कर दिया वाइट से रेड में, और इसने लिख दिया यहाँ पे, ये जो लिखा है ना वो किसके थ्रू लिखा होगा, यूजिंग दिस लॉगर। तो जिसने भी ये एनी पॉइंट स्टूडियो को डिज़ाइन किया होगा, उसने ये लॉगिंग मैकेनिज्म यूज़ किया होगा टू शो ईच स्टेप के कैसे कैसे क्या हो रहा है, राइट। लेट्स रन इट अगेन। लेट्स वेट until it finishes। ठीक, हाउ वी गॉट टू नो कि हमारा एप्लीकेशन डिप्लॉय हो गया, यहाँ पे इसने बराबर से प्रॉपर किया। तो जो भी आ रहा है ना लिख करके, इसे कहाँ से आ रहा है, और हमने जो एपीआई डिजाइन किया इसमें, इसमें भी हमने लॉगिंग डाला है, तो चेक आ रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली इट शुड प्रिंट इन सिमिलर वे। कॉल दिस एपीआई, कॉल करने के लिए गो बैक टू लिजनर, कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे कहाँ पे रन कर रहा है हमारा एपीआई, शेपी लोकलहोस्ट 8081 और पाथ डेमो। ठीक है, यस यस, अभी देखो यहाँ आते हैं अपन वापस कंसोल पे जाते हैं, होना चाहिए भी देखते हैं। देखो डिप्लॉय के बाद इसने 3 लाइन ऐड किया, 3 लाइन ऐड किया क्योंकि हमारे पास 3 लॉगर है,
फर्स्ट लॉगर इज इन मेन फ्लो, सेकंड लॉगर इज इन सब फ्लो, थर्ड लॉगर इज इन अगेन बैक टू मेन फ्लो। तो क्या आ रहा है, ये हमने लिखा था जो आई एम इन मेन फ्लो, ये इस वाले से आ रहा है, राइट। यहाँ पे हमने मेंशन किया आई एम इन मेन फ्लो, क्या भाई ये कॉन्सोल पे लिख रहा है आई एम इन मेन फ्लो। सेकंड क्या कर रहा है, आई एम इन सब फ्लो। तो देखो यहाँ से कंट्रोल कहाँ आया, क्योंकि यहाँ पे सब फ्लो का रेफरेंस था इन डाउन, राइट। तो यहाँ सब फ्लो का जो लॉगिंग मैसेज था उसे प्रिंट किया सब फ्लो। अब सब फ्लो में जो एक्टिविटी होगी दैट विल बी डन एंड देन टू मेन फ्लो। तो उसके बाद क्या होना चाहिए, कंट्रोल यहाँ पे आना चाहिए और इट विल शो आई एम इन, आई एम बैक इन बैक टू मेन फ्लो चाहिए, राइट। यहाँ पे वही बोल रहा है आई एम बैक टू मेन फ्लो। तो ये लॉगिंग हम बहुत ही यूज करते हैं, ये इट इज़ हेल्पफुल। कहीं पे भी कोई ऑपरेशन कर किसी वैल्यू को अगर कंसोल पे देखना है तो वी कैन यूज लॉगिंग। सेट पेलोड में जो हम मैसेज लिखते हैं वो कहाँ पे आता है, that comes back to console, I mean body as a response, but whatever we write through logger that shows in your console। तो दो कॉन्सेप्ट हमने समझा यहाँ पे, वन इज लॉगिंग मैकेनिज्म एंड वन इज फ्लो, हाउ दैट फ्लो गोes। तो फ्लो में हमने कहा था वी हैव थ्री टाइप ऑफ फ्लोज, वन इज द जनरल मेन फ्लो, अनदर वन इज सब फ्लो, थर्ड वन इज प्राइवेट फ्लो। इंटरव्यू में पूछते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप ऑफ फ्लो। वो अलग से यहाँ पे कुछ है नहीं हमारे पास प्राइवेट फ्लो करके। प्राइवेट फ्लो में क्या होता है, इट विल बी योर मेन फ्लो ओनली, बट इसका सोर्स पार्ट में कुछ भी नहीं होगा, सोर्स पार्ट विल बी एज इट इज, ठीक है। इसके सोर्स पार्ट में जैसे हमने इसके सोर्स पार्ट में क्या किया था, लिसनर डाला था, राइट। सब फ्लो में तो सोर्स होता ही नहीं, बट अगर मेन फ्लो में ही, अगर नॉर्मल फ्लो में ही if we leave that source part blank, we do not keep any listener or anything, ठीक है। तो वैसे पार्ट, वैसे फ्लो को क्या कहते हैं हम, सब प्राइवेट फ्लो कहते हैं। प्राइवेट फ्लो इज नथिंग योर मेन फ्लो ओनली, बट विदाउट एनी सोर्स। ठीक है, तो ये समझना है सब फ्लो क्या होता है। सब फ्लो में विल नॉट हैव एनीथिंग, इट विल बी टोटली ब्लैंक। अगर हम यहाँ सब फ्लो को रखेंगे तो देखो कुछ भी नहीं रहेगा, बिल्कुल खाली रहता है, ओनली वन सेक्शन। अगर हम फ्लो को रखते हैं it will have three sections: source, process and error handling. And if we do not give anything in source, so this flow becomes private flow, क्योंकि इसको कोई कॉल ही नहीं कर सकता, राइट। इससे कोई कनेक्ट ही नहीं कर सकता। कनेक्ट तभी करेगा कोई, या तो हम लिसनर में, या तो लिसनर डालेंगे या फिर रिक्वेस्टर डालेंगे, राइट। अगर हमने कोई डाला ही नहीं है इसके सोर्स में, एंड नो वन इज गोइंग टू एक्सेस, जब कोई एक्सेस ही नहीं कर सकता तो उसे क्या बोलेंगे, प्राइवेट। ठीक है, एनी क्वेश्चन और वी आर गुड। सर क्या एक बार और समझा सकते हैं, बस 2 मिनट ओवरव्यू स्टार्टिंग से, जैसे फ्लो 3 टाइप के होते हैं, फ्लो, सब फ्लो, श्योर। फिर आपने जी बस 2 मिनट सर, एक बार ओवरव्यू। क्लास मिस हो गया था क्या? नो 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 सर। ओके फाइन। तो फ्लो का क्या रोल है, दैट वी अंडरस्टूड, राइट। इफ वी सी एन जी एग्जांपल, जी फ्लो में क्या होता है ना कि वी डिफाइन सेपरेट सेट ऑफ टास्क एंड वी सी फ्लो। जैसे हम अगर सॉफ्टवेयर बात करें, सबसे पहले क्या होता है,
all the people in the team will sit together में बैठेंगे, then they will do planning क्या मैं करना क्या है, ठीक है, क्या आइडिया है उस फिर वो क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, राइट, एनालिसिस करते हैं कि ये पॉसिबल है कि नहीं, इसमें क्या रिसोर्स, क्या इतनी, मतलब उससे रिलेटेड सारे रिक्वायरमेंट को गैदर करते हैं। फिर एक फेज आता है हमारा डिज़ाइन फेज में जाते हैं हम, उसको एपीआई स्पेसिफिकेशन डिज़ाइन किया था तो वैसी एक्टिविटी होती है। फिर डेवलपमेंट होता है, फिर उसकी टेस्टिंग होती है, फिर इंटीग्रेट होता है, अगर छोटे छोटे मॉड्यूल में डेवलप हुआ है तो उसे इंटीग्रेट करते हैं, फिर उसे प्रोडक्शन में डाल देते हैं। तो यू सी दिस इज कॉल्ड अ फ्लो, टास्क डिफाइन इन सेपरेट बॉक्सेस, ठीक है। तो हमारी वी हैव सिमिलर थिंग, इफ वी हैव टू डू एनीथिंग इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बेसिक। अगर कुछ भी आप यहाँ पे ड्रॉप करते हो में, जैसे सर आई वांट टू आस्क टू यू सर, हेलो सर, जैसे आपने बताया कि हमने फ्लो को ड्रैग एंड ड्रॉप किया, उससे हमें लिसनर आया, मतलब ये हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे क्या? जैसे आपने कहा ना कि हम बैक जा रहे हैं सब फ्लो में, फिर हम एक बार मेन फ्लो में जा रहे हैं, फिर हम लोगर में जा रहे हैं, मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये हमें स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही करना होगा, मतलब जो आपने प्रोसेस बताया। राइट। देखिए होता है रिक्वायरमेंट पे डिपेंड होता है कि अब सब फ्लो कहाँ पे यूज करेंगे। देखो कौन से कुछ है जो रिपीट करेगा, जो सिर्फ आप ही नहीं यूज करोगे, देयर विल बी कोई और भी डेवलप। जैसे मैंने एक एडिशन का एग्जांपल दिया, समझे एक फंक्शन है जी अभी आपने बताया, जहाँ को आप दे रहे हो और नंबर्स सम करके वापस दे रहा है। जी तो वैसे कि इट इज रिपीटिंग, इट इज नॉट ओनली यू जिसको एडिशन चाहिए होगा, राइट। जी और भी लोग, चंद्रा है उसे चाहिए होगा, लक्ष्मण उसे चाहिए होगा। तो वो क्या वेरी कॉमन एक्टिविटी है, तो कॉमन एक्टिविटी को सब फ्लो में डालते हैं। जी वो सब फ्लो को जहां जहां है हम सिंपली फ्लो रेफरेंस डाल के उसे कॉल कर लेते हैं। तो कंट्रोल कैसे फ्लो करता है, आपका मेन में रहेगा कंट्रोल, तो जहां पे जी भी फ्लो रेफरेंस देंगे, फ्लो रेफरेंस बोलेगा कि ठीक है वेयर डू आई हैव टू गो, हमें कौन से सब फ्लो में जाना है। तो यहाँ पे जैसे आप फ्लो रेफरेंस को सिलेक्ट करते हो, देन यू हैव फ्लो ऑप्शन नहीं, ड्रैग एंड ड्रॉप का। यहाँ पे यू हैव टू सेलेक्ट, अभी जैसे हमने डेमो फ्लो है, डेमो सब फ्लो है, ये सारा वो दिखा रहा है यहाँ पे, जितने भी अवेलेबल है हमारे कैनवास में जी ये सारा दिखा रहा है। तो फिर आस्क इफ वेयर डू आई हैव टू गो, हमने कहा कि भैया इस वाले में जाओ, इस वाले में जाओ, राइट, डेमो जी सब फ्लो इसका नाम है। तो ये क्या किया, यहाँ से कंट्रोल ला करके यहाँ गया, इस एक्टिविटी को फिनिश किया। जैसे एग्जांपल 2 नंबर्स को ऐड करना था, 2 नंबर को ऐड किया, फिर यहाँ वापस आ गया, फिर आपने अपना कंटिन्यू एक्टिविटी किया। फिर सपोज फिर आपने सपोज क्या किया, लेट्स यहाँ पे एक थर्ड एपीआई को आपने कॉल किया रिक्वेस्टर से, वहाँ पे भी कुछ एक्टिविटी की, उसने भी कुछ वैल्यूज़ को रिटर्न दिया। तो फिर आपके पास रिक्वायरमेंट है कि आई नीड टू ऐड दोज वैल्यूज अगेन। तो आप यहाँ से वापस तो नहीं जा सकते हो, आप क्या करोगे, क्योंकि आपने एडिशन के लिए ऑलरेडी एक सब फ्लो डिफाइन कर रखा है। तो सिमिलरली व्हाट यू विल डू, आप फिर से उसे कॉल करोगे फ्लो रेफरेंस के थ्रू। एक फ्लो रेफरेंस को यहाँ पे आप डालेंगे, और फिर इस सब फ्लो को बताएंगे कि भैया तुम जाओ और डेमो सब फ्लो को कॉल करो। देखो कैसे हमने इसे रीयूज किया, फर्स्ट टाइम वी हैव कॉल्ड इट राइट हियर, जी हमने कुछ एक्टिविटी किया, फिर हमें जरूरत पड़ा कि नहीं आई हैव टू ऐड अगेन 2 नंबर्स, हमने फिर से उसे कॉल कर दिया सब फ्लो को। तो कितना हैंडी हो गया, वी हैव डिफाइंड सम एक्टिविटीज इन दैट वन एंड दैट वी विल बी यूजिंग रिपीटेडली, जहाँ जहाँ पे भी जरूरत पड़ेगा उसे रिपीट करते जाएंगे। सो दैट इज अ मेजर रोल ऑफ योर सब फ्लो। सब फ्लो को अगर हम देखेंगे तो इट विल नॉट हैव एनीथिंग, जैसे फ्लो में हमारा क्या सोर्स रहता है, प्रोसेस रहता फ्लो है, में सोर्स होता है, यस सब फ्लो में विल नॉट हैव एनीथिंग, इट्स क्वाइट ब्लैंक। आपको जो एक्टिविटी करना है यहाँ पे उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके लिखना पड़ेगा।
और सिंगल वाला ही होगा, जो प्रोसेसिंग होता है दैट विल ओनली हैपन इन दैट। और सर आपने बताया प्राइवेट फ्लो में मेन फ्लो तो हो, मतलब मेन फ्लो में ही हम करते हैं। हाँ, मेन फ्लो में अगर वी डू नॉट यूज दिस सोर्स पार्ट, अगर हम सोर्स पार्ट को अगर यूज नहीं करते हैं जी तो वो प्राइवेट पार्ट हो, प्राइवेट फ्लो हो जाता है। ओके सोर्स पार्ट में हम क्या करते हैं, या तो रिक्वेस्टर डालेंगे या फिर लिसनर या डालेंगे। तो लिसनर डालेंगे, यस सर, दो चीज। चाहे तो वो किसी को सुनेगा या फिर किसी को जी रिक्वेस्ट भेजेगा। जी तो वो जी जी आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्ट कर रहा है, तो वो पब्लिक हो गया। अभी अभी यहाँ पे हमने क्या किया, इसमें कुछ दिया ही नहीं, तो इसको कोई मतलब ही नहीं है जी बाहर की दुनिया से, तो दिस बिकम्स प्राइवेट। अपना यस प्रोसेस एक्टिविटी करेगा, एरर हैंडलिंग करेगा, बट इट विल नॉट कनेक्ट विथ एनीवन एल्स। जी सर। दैट इज द रोल ऑफ योर प्राइवेट फ्लो। मेन फ्लो, सब फ्लो एंड प्राइवेट फ्लो। लॉगर यस क्या करते हैं, हम बस अपनी एक्टिविटी को ट्रैक करते हैं कि हम कहीं पे भी हमारा फ्लो जा रहा है, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, देन वी आर ट्रैकिंग। जस्ट लिखते हैं कि हाँ हम अभी ये कर रहे हैं, अभी वो कर रहे हैं। वी आर जी adding some numbers, we are dividing some numbers, we are connecting to database, we are reading a file. All those activity will be done tracked by। यस सर, अंडरस्टैंड सर, थैंक यू। ओके कूल। और किसी को कोई डाउट है? हेलो सर। हेलो, ये पूछ रहे थे सर, मेन फ्लो जो है, मेन फ्लो के अंदर एक से ज्यादा सब फ्लो यूज कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ, कितना भी यूज कर सकते हैं, देयर इज नो लिमिट। और उसमें सबको उसी रेफरेंस के जरिए ही जिसको जरूरत पड़ेगा उसको कॉल करना पड़ेगा सर? राइट राइट, रेफरेंस, आपको एक रेफरेंस फ्लो डालना होगा। जैसे आपने प्रोग्रामिंग अगर की होगी किसी भी लैंग्वेज में, वहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल होता है, राइट? जी सर। किसी एड्रेस, किसी के एड्रेस को वो पॉइंट आउट कर रहा होता है, तो वैसे यहाँ पे फ्लो रेफरेंस है। जैसे ही रेफरेंस आप डालते हैं, वो पूछता है कि किसका रेफरेंस दे रहा हो, कहाँ पे जाना है हमें बताओ। तो दैट यू हैव टू सेलेक्ट। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन से सब फ्लो में जाना है। ओके। इसी को अगर थोड़ा और मॉडिफाई कर दें हम, सपोज क्या किया है हमने अभी, लेट मी रिमूव अदर थिंग्स। let me clean the canvas a bit। एक साथ डेमो सब फ्लो और इसका फिर से एक हमने डाला है ऐसे डेमो सब फ्लो। इसका नाम रखते हैं another सब फ्लो। यहाँ पे भी लॉगर डालते हैं थोड़ा। ये कहाँ से आ गया? तो अब हमारे पास दो सब फ्लो है। पहला अपन यहाँ से कॉल कर रहे हैं, दूसरा को सपोज हमें यहाँ से कॉल करना होगा। यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा, अनदर सब फ्लो। ठीक है, इसमें हम लिखते हैं कुछ, वी आर इन अनदर सब फ्लो। तो रिक्वेस्टर नहीं डालेंगे यहाँ पे, लेट्स ऐड समथिंग एल्स, इजी वाला। ऐसे सेट वेरिएबल होगा। My bad। फ्लो रेफरेंस दिया सब फ्लो का। फिर से लॉगर डालते हैं जस्ट टू सी वी आर बैक टू सब फ्लो। We are back to
main from another subflow. Let's see if it is running. Yes. देखो इसको समझते हैं पहले, ठीक है। हमने क्या किया यहाँ पे, अभी अपन मेन फ्लो पे लिसनर चल रहा है, कहीं पे रन कर रहा है। मेन फ्लो में आया, इसने देखा कि एक फ्लो रेफरेंस है और उस फ्लो रेफरेंस में जाना है। तो फ्लो रेफरेंस किसका था यहाँ पे, डेमो सब फ्लो। डेमो सब फ्लो कौन सा, ये है, यहाँ पे आएगा। यहाँ पे कुछ एक्टिविटी होगी, एक्टिविटी हम नहीं रखना है अभी, सिर्फ लॉगर रखना है, जस्ट टू सी। यहाँ पे कह रहा है आई एम इन सब फ्लो, ठीक है। फिर उसके बाद इट विल कम बैक टू योर मेन वन। फिर यहाँ पे बोलेगा कि आई एम बैक टू मेन फ्लो। मेन फ्लो गया, उसने एक वेरिएबल सेट किया, मीन्स कोई भी एक्टिविटी होगी यहाँ पे, इट्स नॉट जस्ट सेटिंग वेरिएबल। फिर जब आगे जाएगा फ्लो तो इसने कहेगा कि भैया, इसने देखा कि एक और फ्लो रेफरेंस है यहाँ पे, और वो फ्लो रेफरेंस कहाँ जाने को बोल रहा है, अनदर सब फ्लो, यानी कि दिस वन, अनदर सब फ्लो। फिर यहाँ पे आएगा ये अनदर सब फ्लो में जो एक्टिविटी होगी वो करेगा, then it will come back to main flow. So this is how the flow will go from starting to end. अब इसे रन करके देखते हैं एक बार। Let's see the console. देखो यहाँ पे अब लॉगस बढ़ गया हमारा। सबसे बोल रहा है हाँ, आई एम इन मेन फ्लो, परफेक्ट। आई एम इन सब फ्लो, क्योंकि हमने पहला सब फ्लो रेफरेंस दिया था, बिकॉज ऑफ दैट इट वेंट टू सब फ्लो। फिर ये कह रहा है आई एम बैक टू मेन फ्लो, फिर वापस गया, इसने फिर वेरिएबल सेट किया। वेरिएबल सेट करने के बाद फिर ये अनदर फ्लो रेफरेंस टू अनदर सब फ्लो। तो यहाँ पे फिर गया वी आर इन अनदर सब फ्लो, अनदर सब फ्लो वाला एक्टिविटीज ने फिनिश किया, देन इट इज बैक टू वी आर बैक इन मेन फ्लो फ्रॉम अनदर सब फ्लो। So that is general activity, how it works, sub flow and flow. Is it clear, guys? Any doubt? No, sir. Okay, cool. ठीक है, आज इतना ही काफ़ी आज के लिए। आई मीन सेशन रिलेटेड टू फ्लो एंड लॉगर्स, इस पे थोड़ा हैंड्स ऑन कीजिए। कोई अगर डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो लेट्स पोस्ट दैट इन द ग्रुप, विल फिक्स इट। अगर किसी को कोई इशू है देन यू कैन शेयर राइट नाउ।